हेलो डियर फ्रेंड्स। कंप्यूटर टीचर या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और डाटाबेस में सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में आता है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन इन डीबीएमएस। सो यहाँ पर हम 5 नॉर्मल फॉर्म होती है 1 2 3 BCNF डेटाबेस एंड 4th 5th। सो फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। Normalization, that means database design and technique that reduce data redundancy and eliminate undesirable characteristics like insertion, update, deletion, anomalies. So normalization rules divide larger table into smaller table and links them using relationship. The purpose of normalization in SQL is to eliminate redundant repetitive data and ensure data is stored logically. So we are having a few normal forms in normalization. So let's discuss first normal form, second, third, fourth, fifth. Sixth is the future use, so we are not using till now. So थर्ड के बाद आपके पास आती है Boise code. Is the inventor of Boise. He gave the form name of Boise code for his normal form. So we'll talk about evolution of normalization theories. So first normal form, second, third, Boise code 4, 5, 6. So first we'll talk about database normal form. अगर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात करें रूल्स की, तो ईच टेबल सेल्स शुड कंटेन अ सिंगल वैल्यू, यानी कि हर टेबल का सेल जो है कंटेन करता है सिंगल वैल्यू. Each record needs to be unique. That means a primary key concept. So now what is key in SQL? A key is an SQL is a value used to identify records in a table uniquely. An SQL key is a single column or combination of multiple columns used to uniquely identify row or tuples in the tables. Row, that means number of column, tuple, that means the record. So SQL key is used to identify duplicate information and it also help establish a relationship between multiple tables in the database. So first we talk what is primary key. Primary key, that means only a column used to identify a database record uniquely. That means remove the duplicacy of record. So a primary key is a single column value used to identify a database record uniquely. Now we are having few elements. So first, primary key cannot be null. Primary key value must be unique, and the primary key value should rarely be changed. The primary key must be given a value when a new record is inserted. तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, यानी कि उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता. और प्राइमरी की चेंज बहुत रेयर केस में की जाती है, अदरवाइज नहीं होती है, नहीं करते. और प्राइमरी की जो वैल्यू है वो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट होने पर चेंज होती है. नाउ व्हाट इज कंपोजिट की. सो कंपोजिट की इज अ प्राइमरी की कंपोज ऑफ मल्टीपल कॉलम्स यूज टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली. तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स है और वहां पर मल्टीपल प्राइमरी की है. तो जो मल्टीपल प्राइमरी की है वो क्या करते हैं, वहां पर यूनिकली आइडेंटिफाई करती है मल्टीपल कॉलम्स को. तो दैट इज अ प्राइमरी की कॉल्ड अ कंपोजिट की, मल्टीपल. नाउ कंपोजिट की इन डाटाबेस, सो रिक्वायर बोथ फुल नेम एंड एड्रेस. सो आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली, यानी कि सपोज करो वन नेम इज राजेश एंड सेकेंड इज रमेश राजेश. सो बोथ आर नेम्स राजेश. सो how can we identify in uniquely? So address will be shifted. Rajesh live in Kota and second Rajesh live in Bombay. So that are the different. So we'll assign the address as a primary key. Okay, now a second normal form. Rule 1 being one normal form. Rule 2, single column primary key that doesn't functionally dependent on any subset of candidate key. So that means second normal form क्या कहती है कि जो सिंगल कॉलम की प्राइमरी की है उसकी फंक्शनलिटी डिपेंडेंट नहीं होती किसी भी सबसेट पे. ओके, तो उसके लिए हमें एक रिलेशन बनाना पड़ता है. तो रिलेशन कब बनेगा, जब हम कंपोज मोर देन वन प्राइमरी की यूज करेंगे तो मल्टीपल टेबल्स में रिलेशन क्रिएट हो सकता है. नाउ अगर आपको मल्टीपल टेबल्स में रिलेशन बनाना है तो वो फॉरेन की के माध्यम से होगा. अब फॉरेन की क्या होती है,
A foreign key can have a different name from its primary key. It ensure row in one table have a corresponding row in another. So unlike the primary key, they don't have to be unique. Most often they aren't. And foreign key can be a null even though primary key cannot. यानी कि foreign key null हो सकती है but primary key cannot. So what are the transitive functional dependency? A transitive functional dependency is when changing a non key column. यानी कब होती है? जब नॉन की कॉलम को चेंज किया जाता है. माइट कोज एनी ऑफ अदर नॉन की कॉलम्स टू चेंज. यानी कि जब आपको नॉन की कॉलम को चेंज करना हो तब वहां पर फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ जाती है. फिर बात करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म की. दिस इज ओवरव्यू. विल गो टू फुल फ्लेज एंड आफ्टर दिस डिस्कशन ओवरव्यू. सो रूल 1 बीन सेकेंड एनएफ. यानी कि जो रूल 1 है, अब रूल 2 में क्या होगा? हैज नो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी. यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म का सीधा सा फंडा है कि इसमें ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होती है. सो नाउ नेक्स्ट BCNF, Boise Code Normal Form. Even when a database is in third normal form, still there would be anomalies resulted. It has more than one candidate. यानी कि क्या होता है, इस फॉर्म का यूज क्यों हुआ BCNF का? बिकॉज जब एक से ज्यादा कैंडिडेट की होती है टेबल में तो वहां पर एनामलीज आती है रिजल्ट में. तो उस केस को रिमूव करने के लिए BCNF, बॉयसी कोड का यूज किया गया. फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो जो रूल्स हैं इसके, इफ नो डाटाबेस टेबल इंस्टेंस कंटेन 2 और मोर इंडिपेंडेंट एंड मल्टी वैल्यूड डेटा. दैट मीन्स यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि जब डाटाबेस के अंदर 2 और 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट और मल्टी वैल्यू डाटा होता है तो उनको डिस्क्राइब करना रिलेवेंट एंटिटी के साथ वो कौन करता है? फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आता है. नाउ बात करें फिफ्थ की, तो अ टेबल इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म ओनली इफ इट इज फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू एनी नंबर ऑफ स्मॉलर टेबल्स विदाउट लॉस ऑफ डेटा. यानी कि फिफ्थ का यूज ही तभी होगा जब 4 में डेटा डिकम्पोज नहीं हो सकता, टेबल्स का डेटा लॉस हो बिना, तब वी आर गोइंग टू फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म. अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को अगेन ब्रीफ व्यू में. अब एक्सप्लेन मेथड में करेंगे, अभी ब्रीफ किया था, अब इसके पूरे प्रोसेस बताता हूं. तो नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं. नॉर्मलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द डाटाबेस. यानी डाटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक प्रोसेस क्या है? नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशंस. It is also used to eliminate the undesirable characteristics like insertion, updation and deletion anomalies. तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है कि रिडंडेंसी को मिनिमाइज करता है और जो रिलेशन होते हैं, जो उसमें करेक्टरिस्टिक होती है, उनको अनडिजायरेबल, उनको एलिमिनेट करता है उस वक्त. अब नॉर्मलाइजेशन डिवाइड द लार्जर टेबल इनटू स्मॉलर टेबल. यानी कि बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी टेबल्स है उनको स्मॉल पार्ट में या स्मॉल टेबल में हम डिवाइड कर लेते हैं एज ए रिलेशनशिप. तो नॉर्मल फॉर्म इज यूज टू रिड्यूस रिडंडेंसी फ्रॉम द डेटाबेस टेबल. नाउ टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म, तो मेनली वी आर यूजिंग 4 and 1 is the BCNF only. So this is the concept of normal form, first, second, third and BCNF. So main concept is here 4, 5, 6 is rather than another point, but mostly we have done this task on various of this. So first, a relation is in 1F, it is contains an atomic value. Atomic, that means a primary key value. Second, relation will be in second NF if it is in one normal form and all non-key attributes are fully functional dependent on the प्राइमरी की. यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि जब रिलेशन होगी वो क्या होगी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और उसके जो नॉन की एट्रीब्यूट है उससे फुल्ली फंक्शनल डिपेंड होगी प्राइमरी की के थ्रू. थर्ड की बात करते हैं तो रिलेशन विल बी इन थर्ड एनएफ इफ इट इज इन सेकेंड एनएफ एंड नो ट्रांजिशन डिपेंडेंसी. यानी कि ये कब लगेगी, रिलेशन तो है बट सेकेंड टेबल नॉर्मल फॉर्म से उसकी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं है. फोर्थ की बात करें, रिलेशनशिप विल बी इन 4NF इफ इट इज इन बॉयसी कोड. तो 4 को हम क्या बोलते हैं, बॉयसी कोड भी बोलते हैं. तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होती यहाँ पर. फिफ्थ की बात करें, रिलेशन इज फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन 4
NF and not contains any join dependency and joining should be lossless। तो यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर joining dependency नहीं है और joining होता है तो loss के बिना होता है, तो ये चीज यहाँ पर contain करता है। फोर्थ फिफ्थ, अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को एक्सप्लेन करते हैं। A relation will be in first NF if it is contain an atomic value. It states that an attribute of a table cannot hold multiple values. It must hold only single value attributes. इसमें क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी की है वो ओनली सिंगल वैल्यू को होल्ड करेगी, मल्टीपल को नहीं करेगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिसअलाउ द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, यानी कि कंपोजिट एट्रीब्यूट को एंड देयर कॉम्बिनेशन को। अगर एग्जांपल की बात करें, सपोज करो रिलेशन एम्प्लॉई इज नॉट इन फर्स्ट बिकॉज ऑफ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो यहां पर एक टेबल है मेरे पास, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम का फोन नंबर एंड एम्प्लॉई स्टेट। तो यहां पर कुछ रिकॉर्ड है एम्प्लॉई का, थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉई है, इसका रिकॉर्ड भी है। और तो अब जो डिकम्पोजिशन ऑफ द एम्प्लॉई होगा वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हैज बीन शो। तो क्या होगा, जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चारों एम्प्लॉई है तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉई आईडी मैच कर रही है, तो इस केस में ये क्या हो गया, डबल डेटा शो कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोन नंबर, क्योंकि यहां पर फोन नंबर पे भी एक आईडी लगी हुई है। तो दैट केस अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो रिलेशनल मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यानी कि सेकंड जो है फर्स्ट से रिलेशन होनी चाहिए। तो इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, यानी कि जो नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं वो फुल्ली फंक्शनल होते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में प्राइमरी की के थ्रू। तो लेट्स अज्यूम अ स्कूल कैन स्टोर द डेटा ऑफ टीचर्स एंड द सब्जेक्ट्स द टीच इन अ स्कूल। टीचर कैन टीच मोर देन वन सब्जेक्ट। सो नाउ विल टॉक अबाउट टीचर्स। सो टीचर ID 25 and 7 this one, these are the subject and these are the age. So now in the given table non-primary attributes teacher age is dependent on the teacher ID. तो टीचर की जो एज है वो किस पे डिपेंड है, टीचर की आईडी पे। Which a proper subset of a candidate key, that's why it violates the rule of second normal form. To convert the given table into second NF, we decompose it into two tables. तो हम क्या करते हैं, इनको two tables में डिकम्पोज कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट इज टीचर आईडी एंड टीचर एज, ओके, एंड टीचर सब्जेक्ट। तो टीचर आईडी और टीचर एज, तो दोनों में टीचर आईडी कॉमन है, एक में एज के साथ और एक में सब्जेक्ट के साथ। तो हमने दो टेबल में डिवाइड कर दिया, किसमें, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट प्राइमरी की, सेकंड अ टेबल शुड बी डिवाइडेड इन टू पोर्शन। नाउ विल टॉक थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अ रिलेशन विल बी इन थर्ड NF if it is in second NF and not contain any transitive partial dependency. That means यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पार्शियल टाइप की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होती हो सेकंड में, सेकंड थर्ड में। तो थर्ड NF क्या करेगा, थर्ड NF इज यूज टू रिड्यूस द डेटा डुप्लीकेशन, यानी कि डेटा का डुप्लीकेशन रिड्यूस कर देगा। इट इज ऑल्सो यूज टू अचीव द डेटा इंटेग्रिटी, यहाँ पे कंस्टेंट लगा देगा इंटेग्रिटी का, यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा रिड्यूस हो जाएगा, तो एक्सेस नहीं होगा। इफ देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स देन द रिलेशन मस्ट बी इन थर्ड नॉर्मल। यानी कि ध्यान रखिए, जहां पर किसी भी तरह की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं हो नॉन की एट्रीब्यूट्स पर, वो रिलेशन क्या कहलाता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट होल्ड एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस for every non-trivial function dependency x dependent to y. So x is a super key and y is the prime attribute. So each element of y is a part of some candidate key. So now we'll talk about employee table. These are the employee table and these are the field attributes, employee ID, name, zip, state and city. These all are different ID, okay. Now a super key table. So employee ID, employee name, employee ID, employee name, zip and so on. तो हमने इसको तीन तरीके से डिवाइड कर दिया। एक तो EMP ID को, एक एम्प्लॉई ID, एम्प्लॉई नेम, एक एम्प्लॉई ID, एम्प्लॉई नेम और जिप, और ऐसे ही हम स्टेट का भी करेंगे। तो कैंडिडेट की क्या होगी यहाँ पे, एम्प्लॉई ID, यानी कि तीन टेबल बनी तो तीनों में प्राइमरी क्या रही,
डिवाइड की तो एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी क्या होगी भाई, कैंडिडेट की। दैट मीन्स नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स इन द गिवन टेबल, ऑल एट्रीब्यूट एक्सेप्ट एम्प्लॉय आईडी आर नॉन प्राइम, यानी कि सभी एट्रीब्यूट ने क्या एक्सेप्ट किया कि जो एम्प्लॉय आईडी वो नॉन प्राइम है। हियर एम्प्लॉय स्टेट एंड सिटी डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय जिप and employee zip dependent on the employee ID. The non-prime attribute of employee state and employee city, so they are the transitive dependent on super key. Super key क्या होगी हमारी, employee ID. It violates the rule of third normal. तो यही चीज क्या करती है, वायलेट करती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूल को. So that's why we need to move the employee city and employee state to the new employee zip table. तो with employee zip एज अ प्राइमरी की, तो हम क्या करेंगे, अब एक और प्राइमरी की बनाएंगे. तो एक टेबल हमने क्या बनाई, एम्प्लॉय आईडी नेम एंड जिप. सो एम्प्लॉय जिप टेबल में क्या है, एम्प्लॉय जिप स्टेट एंड सिटी. यहां पर जिप एक आईडी बन गई एज ए फॉरेन की, उसकी प्राइमरी की यहां पर फॉरेन की, या फिर इसकी प्राइमरी की यहां पर एज ए फॉरेन की. तो इस एनामलीज को दूर करने के लिए जो नई फॉर्म आई वो आई बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म, BCNF. BCNF is the advanced version of third normal form. It is stricter than third normal form, यानी कि ये काफी बेटर थी थर्ड से. A table is in BCNF if every functional dependency X dependent Y, that means X is the super key of the table. So now BCNF the table should be in third normal form, and for every FD left hand side is a super key. So now let's assume there is a company where employee works in more than one department. So employee table is like that: employee ID, employee country, employee department, employee data type, and EMP department number. So these are the 5 columns in table. So now in the above table functional dependency are as follow. So employee ID is the dependent, जो है employee country किस पे डिपेंड है, employee की ID पे. और employee ID डिपार्टमेंट पे क्या क्या डिपेंड है, employee डिपार्टमेंट पर डिपार्टमेंट टाइप, employee डिपार्टमेंट नंबर. तो यहां पर क्या हो गया, फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉलो होगी. तो कैंडिडेट की कौन सी हुई, एक तो हुई एम्प्लॉय आईडी और एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट. तो द टेबल इज नॉट इन द BCNF बिकॉज नाइदर EMP डिपार्टमेंट नॉर एम्प्लॉय आईडी अलोन आर कीज. मतलब क्या कहते हैं कि दोनों अलग अलग कीज में नहीं हो सकती. तो to convert the given table into BCNF, so we decompose it into 3 tables. तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को 3 टेबल्स में डिकम्पोज करेंगे. फर्स्ट एम्प्लॉय कंट्री टेबल, एम्प्लॉय आईडी प्लस कंट्री. सेकेंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डेटा टाइप, डिपार्टमेंट टाइप एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर. एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट मैपिंग. सो बोथ आर द एम्प्लॉय टेबल एंड both are the primary key, you should be in another table. So now a functional dependency अगर बात करें तो employee ID पे डिपेंड कौन है, कंट्री. एम्प्लॉय डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट कौन है, डिपार्टमेंट टाइप और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर. नाउ वी टॉक अबाउट कैंडिडेट की. ओके, लेट्स L. So first for the first table employee ID, second table employee EMP DEPT, and third table EMP ID EMP DEPT. So now the next move the fourth normal form. A relation will be in fourth NF if it is in Boise code normal form and has no multi value dependence. यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है BCNF, अगर उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है. For a dependency A denoted B, if for a single value of A multiple values of B exist, then the relation will be a multiple value. यानी सपोज कीजिए A में सिंगल वैल्यू बट मल्टीपल वैल्यूज किसमें, B में एग्जिस्ट है, तो वो क्या हो गई, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होगी. अब सपोज बात करते हैं स्टूडेंट की. स्टूडेंट ID कोर्स ऑन हॉबी, ये एक टेबल है. देन गिवन स्टूडेंट टेबल इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बट द कोर्स एंड हॉबी आर two independent entity. Here there is no relation between course and hobby.
तो यहाँ पर जो है कोर्स और हॉबी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज ईच एंड एवरी कोर्स इन यूनिक एंड हॉबी इज द यूनिक, so it will be considered as a key. So what we do, student relation, let me just student relation a student with student ID. So 21 contains 2 courses, computer and math, and 2 hobbies, dancing and singing. So there is a multi-value dependency. So student ID which leads to unnecessary repetitions. यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 21 में मैथ्स है और कंप्यूटर है, डांसिंग तो 2 है, तो अननेसेसरी 2 बार ही रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गई, एक तरह की एनोमली होगी. तो इसमें क्या करेंगे हम, सो मेक टू द अबाउट टेबल इनटू 4th NF. सो वी कैन डिकम्पोज इट इन 2 टेबल. हम इनको 2 टेबल में डिकम्पोज करेंगे, स्टूडेंट आईडी कोर्स एंड स्टूडेंट आईडी हॉबीज. नाउ वी आर मूविंग 5th normal form. So a relation is in 5th NF if it is in 4th NF and not contain any joint dependency, and joining should be lossless. So 5th NF is satisfied when all the tables are broken into as many tables as possible in order to avoid redundancy. So 5th NF is also known as project join और normal form के रूप से जानते हैं. एग्जाम्पल की बात करें, सब्जेक्ट, लेक्चरर और सेमेस्टर. यहाँ पर एक टेबल है. In the above table, Alexa take both computer and math on class for semester 1, but that doesn't take math class for semester 2. In this case, combination of all these fields required to identify a valid error. यानी कि अगर Alexa कंप्यूटर और मैथ्स क्लास पढ़ती है और सेमेस्टर 1 बट डजंट टेक द मैथ्स, सेमेस्टर में मैथ्स नहीं है बट सेमेस्टर 2 में है, तो इस केस में कॉम्बिनेशन क्या होगा, फिल्ड्स का रिक्वायर्ड होगा वैलिड डेटा के लिए. सो द मेक द अबाउट टेबल इनटू 5th NF वी कैन डिकम्पोज इनटू अ 3 रिलेशन, P1, P2 एंड P3. सो कैसे करेंगे, P1 में क्या होगा, सेमेस्टर सब्जेक्ट, P2 में सब्जेक्ट लेक्चरर, P3 में सेमेस्टर एंड लेक्चरर. तो यहां से इस तरह से हम इसको कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, वो एनोमलीज हट जाएगी. सो नाउ रिलेशनल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं. When a relation in the relational model is not in appropriate normal form, then the decomposition of a relation is required in a database. It breaks the table into multiple tables. So if the relation has no proper decomposition, then it may lead to problem like loss of information. Decomposition is used to eliminate some of the problems of bad design like anomalies, inconsistencies and redundancy. So type of decomposition we'll talk about. A decomposition is 2 type, lossless and dependency preserving. So lossless क्या होता है, if the information is not lost from the relation that is decomposed, then the decomposition will be lossless. अगर information lost नहीं हुई तो रिलेशन कौन सा है, डिकम्पोज है, और डिकम्पोजिशन क्या हुआ, बिना लॉस के हुआ, तो लॉसलेस. द लॉसलेस डिकम्पोजिशन गारंटी दैट द जॉइन ऑफ रिलेशंस विल रिजल्ट इन द सेम रिलेशन एज इट वाज डिकम्पोज. यानी कि जो जॉइंट टेबल से जो रिजल्ट आएगा वो एकदम सही आएगा. The relation is said to be lossless decomposition if natural join of all the decomposition give the original relation. तो यहाँ पर देखिए एक एम्प्लॉई डिपार्टमेंट टेबल है जहाँ पर आईडी है, नेम है, एज है, सीटी है, डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट. तो ये सारे किसके, एम्प्लॉई के एट्रीब्यूट्स है, कॉलम्स है, और जो रिलेशन बन रही है वो डिकम्पोज हो रही है 2 रिलेशन में, एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट में. तो फर्स्ट तो बनेगी एम्प्लॉई आईडी, नेम, एज और सिटी. सेकंड बनेगी डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट नेम. तो नाउ व्हेन दीज 2 रिलेशन आर जॉइन ऑन द कॉमन कॉलम EMP ID, देन द रिजल्टेंट रिलेशन विल लुक हियर, एम्प्लॉय रिजल्ट रिलेशंस डिपार्टमेंट. सो अ डेटा विल बी हियर लाइक दैट, EMP ID, एम्प्लॉय नेम, एज, सिटी, डिपार्टमेंट ID एंड डिपार्टमेंट. तो दिस इज a lossless decomposition. Now dependency preserving. So it is an important constraint of the database. In the dependency preservation, or at least one decomposed table must satisfy every dependency. So if a relation R is decomposed into a relation R1 and R2, then the dependency of R either must be a part of R1 or R2,
or must be a derivable from the decomposition of functional dependency of R1 and R2. So for example, suppose there is a relation R ABCD with the functional dependency set A greater than BC. Yeah, A denoted by BC. The relation R is decomposed into R1 ABC and R2 AD. So which is dependency preserving because FD A denoted BC is a part of relation R1 ABC. So now we'll talk about multi-value dependency. So multi-value dependency occurs when two attributes in a table are independent of each other but both depend on a third attribute. A multi-valued dependency consists of at least two attributes that are dependent on a third attribute. That's why it always requires at least three attributes. Example, suppose there is a bike manufacturer company which produce two colors, white and black, of each model every year. So bike model, manufacture year and color. So you can see that both are the same ID, same year and but a different color. So now here columns color and manufacture year are dependent on bike model and dependent of the each other. So in this case these two columns can be called as a multi-value dependent on a bike model. The representation of these dependencies is shown below: bike model, manufacturer, bike model, color. तो डिपेंडेंट हो गया. तो दिस कैन बी रीड एज अ बाइक मॉडल मल्टी वैल्यू मैन्युफैक्चर ईयर एंड बाइक मॉडल मल्टी determined color. So joint dependency will be imposed. Joint decomposition is a further generalization of multi-value dependency. If the join of R1 and R2 over C is equal to relation R, then we can say that a joint dependency exists. So where R1 and R2 are the decomposition R1 bracket ABC and R2 bracket CD of a given relation R. So that means ABCD. So alternatively R1 and R2 are a lossless decomposition of R. So a joining data of dependency of R1, R2, Rn is said to hold our relation R if R1, R2 and dot dot Rn is a lossless joint decomposition. The ABCD CD will be a JD of R, joint dependency of R, if the join of joins attribute is equal to the relation of R. So here R1, R2, R3 is used to indicate that the relation R1, R2, R3 and so on of joint dependency of relation. So thank you, have a nice day. Normalization has been done and nothing should be out. इससे ज़्यादा बाहर कुछ आएगा नहीं टीचर इंस्ट्रक्चर में. Okay, so if you like that, thank you, subscribe my channel, share my channel. Thank you, have a nice day.